Yes, sir. Yes, sir. Okay. So underwriter point clear हो गया सबको? All of you? Yes, sir. Anybody any doubt? As No, such, sir. ठीक है, fine. Now we'll look into the challenges that is faced by the financial sector. So these are the challenges that our financial sector face. The first one is cost of operations and cost of funds. Business operation cost keeps on increasing because of the inflation level, and the funds cost of funds basically means what? Ki if you are arranging finance from the outside, then it is obvious that you have to give returns to them, be it equity shares, be it bonds, be it debentures, or be it preference shares. Either you have to pay dividend on time or you have to pay interest on time. So that forms a part of what cost of funds that you have acquired from the outside party. The next one is credit delivery system, which is not that efficient in our country. Then we have non-performing asset, which talks about the advances or loans which is being given by the banks to the citizens of India. So if they do not repay their loan, so it forms the part of what? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बेसिकली जब हम लोग किसी को एडवांस देते हैं दैट आर रिफ्लेक्ट और दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट साइड बैलेंस शीट में भी असेट साइड में वो रिफ्लेक्ट होता है राइट तो जब भी आप किसी को एडवांस देते हैं तो वो आपके लिए तो एसेट हो गया बिकॉज इट इज रिसीवेबल्स व्हाट इफ दैट पर्सन स्टॉप गिविंग यू द रिटर्न्स क्या होगा फिर आपके लिए प्रॉब्लम है ना राइट पैसा मिलेगा नहीं तो जो एसेट जो क्रिएट किया था जो परफॉर्मिंग था लाइक सपोज कि मिस्टर ए ने आपने मिस्टर ए को लोन दिया और टिल फर्स्ट ईयर दैट मिस्टर ए इज गिविंग यू मनी ऑन टाइम after a year he because of this covid he is not in position to repay you amount on time so it is non performing it is not generating returns right तो पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ये जो भी एडवांसेस बैंक्स देता है सबको अगर वो रिटर्न्स नहीं दे सकता तो क्या होगा फिर वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट में okay so whenever you read any newspaper which is of finance you take economic times you take mint एक पेज पे आपको कोई भी बैंक का एनपीए के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा are you getting it then we have risk management it is not that efficient because the tools that are available in our country such as insurance or derivatives it is not used as the risk management tool it is used as a speculation then we have developmental challenges with respect to infrastructure challenge then regulation challenges which keeps on changing rules and regulations then payment and settlement system which is due to delay we face this problem then we have long term infrastructure finance and corporate debt market these 2 points goes parallel wherein if any company say for example L&T comes up with some bonds of 35 years ka maturity and they says ki they will pay you what 6 or 7% 6.5% interest per annum on the bonds that they have issued तो पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे कि जो बॉन्ड अगर आप सब्सक्राइब करते हो ये बॉन्ड में तो आपका जो पैसा है वो कितने साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा 35 years के लिए बट यू विल गेट व्हाट interest on time that is what bond feature has so will you subscribe for that bond or not probably your answer would be no because sir long term horizon 35 years किसने देखा है कंपनी बंद हो गया तो right so long term infrastructure finance के लिए we don't have retail market developed and neither the corporate debt market developed Sir, so can you please share your screen again? sorry Can you please share your screen again? There is some green lining. The lower part is not visible. okay just a moment huh
Now, can you see it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So कॉर्पोरेट डेट मार्केट मीन्स व्हाट कि अगर कोई लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए आता है या फिर तो कोई कंपनी को फंडिंग्स चाहिए और वो भी डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यू करके और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, पीपल आर नॉट रेडी टू सब्सक्राइब. द रीजन बिहाइंड दैट इज uncertainty of future. You never know whether the company is going to exist or not. So for that reason, we don't subscribe to the debt market instruments. One good example for this is when Kingfisher Airlines started. When Kingfisher Airlines started, तो वो एयरलाइन इंडस्ट्री में जो एयरप्लेन्स वगैरह जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा था उसके लिए विजय माल्या ने क्या लिया था, लोन लिया था. एक बैंक ने नहीं दिया था, कंसोर्शियम बेसिस पे लोन सिंडिकेट करके मिला हुआ था. ठीक है. सो क्या था सिनेरियो कि एक बैंक था जिसने एज अ लीड बैंकर एक्ट किया था, जिसने विजय माल्या के लिए लोन अरेंज करके दिया था. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट बैंक वाज SBI. So approximately 9,000 crores was the requirement for that project to start their airline company. So basically at the end क्या हुआ? You know the scenario, right? Yes, sir. So ये एक प्रॉब्लम है. और दूसरा चीज ये है कि अगर तुम लोग अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो फंडिंग्स मिलता है क्या? फंडिंग्स अगर तुम लोग का ऑप्शन नहीं पता, लाइक वन ऑफ द source that is being opted by the fresh startup is venture capital. Okay. So पहले तुम लोग को पता नहीं था, अभी तुम लोग को पता है, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर कि वेंचर कैपिटल करके कोई कंपनी है. मतलब वेंचर कैपिटल करके कंपनी नहीं है, बट वेंचर कैपिटल फर्म्स आर टू मेनी इन इंडिया हु गिव्स फाइनेंस फॉर द फ्रेश स्टार्टअप. Okay. So these are the problems or challenges that is faced by the financial sector, and which is not only in India but outside India also. So next, my question to you is, or rather one task that you will have to perform. एक So छोटा what सा are homework है. developmental challenges? Sorry. Developmental challenges? हाँ, developmental challenges is basically talks about infrastructure development that are at the pace at which infrastructure gets developed in our country. And you know what is that scenario. If the political party changes, then the infrastructure project that is being proposed by the previous party gets on hold, right? The progress or the Yes. pace at which it was supposed to finish, it gets halted. Slower. Yeah, it goes slow. So that is the developmental challenges that our financial sector face. So there are various norms or what do I say, different measures that financial sector needs to come up with to support the growth or to support the citizen of India. But as you know कि कुछ change लेके आने के लिए कुछ sacrifice करना पड़ता है, but people are not ready for it, right? Yes, sir. So whatever the change that is being brought in by the authorities, so that change has got some positive aspect or some negative aspects also. Uh, These are the so challenges. a particular student left the meeting because of poor connectivity issue. She's asking whether you could take her in again. Let me just see. Cloud participants. It's Preeti. Yeah. Yeah, I have admitted her. Admitted. Thank you, sir. Okay, fine. So, yeah, what I was Sir, discussing. I have a question. Yeah. सर बहुत बार न्यूज में ऐसे देखते हैं कि इट्स रिसेशन टाइम, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, तो सर वो सब क्या रहता है? It's basically the situation wherein no productive activity takes place in our country or any economy, wherein income level falls.
nobody is ready to purchase, go for a purchase. तो क्या होता है, सब नीचे ही जा रहा है, प्रेशर आ रहा है. Okay, कहाँ से? आइदर पीयर पॉलिटिकल पार्टी से, या फिर तो दूसरे कंट्री से, या फिर तो ओवरऑल वर्ल्ड का सिनेरियो ही ऐसा है कि जहाँ पे कुछ चल ही नहीं रहा. सो व्हाट डू यू फील? व्हाट इज रिसेशन? टेल मी फर्स्ट. व्हाट डू यू मीन बाय रिसेशन? नहीं पता सर, इसलिए पूछा. अच्छा, रिसेशन क्या होता है वो वही नहीं पता आपको? यू फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? नो सर, देन So, कॉमर्स ही हूँ. commerce background and you don't know the recession. Recession is No, a sir. situation wherein entire country's growth goes down. Do you understand growth? Yes sir. So there is economic cycle. See, तेरे लिए एक काम है, economic cycle क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा information search कर. So Sir, can economic you cycle repeat? is basically Economics? sorry, Economic what sir? economic cycle. Okay sir. ओके, सो इकोनॉमिक साइकिल अगर तू सर्च करेगा तो वहां पे तुझे ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि रिसेशन क्या होता है, प्रोग्रेस क्या होता है, फिर स्टैग क्या होता है. ये सब तुझे जो टेक्निकल Okay, टर्म्स है sir. विच आर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका So- ब्रीफ आइडिया तुझे मिलेगा. यस. agar even if the world is undergoing a economic recession, given the situation, so why is that a currency doesn't stagnate? Does it go in a continuous decline? व्हाट इज द एक्सचेंज रेट गोइंग ऑन? Dollars, right? या राइट, डॉलर. So why is that it is not stagnating? Why is it declining so much? Because we are conditions in a are world not- economic recession. because conditions are not same at every economy. Okay. I didn't Like you understand say, that. for example, ठीक है, we'll take this example only कि number of this thing operations, business operations that are operating in our country is not the same the number of business which are working in US. Hmm. So economic activity अगर दोनों country में different है and which keeps on changing on daily basis, so why will we consider कि मेरा जो exchange rate है वो same होना चाहिए, currency का exchange rate. So there are various factors which affects the exchange rates. ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या होता है वो एक सिनेरियो आता है, मेरे कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है वो भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है. फिर ट्रेड लेवल क्या चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना कर रहा हो रहा है डेली बेसिस पे मेरे कंट्री में, वो भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है. फिर क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी अफेक्ट करता है एक्सचेंज रेट को. देन गोल्ड रिजर्व विल अफेक्ट द एक्सचेंज रेट. वेरियस फैक्टर्स लाइक सी गोल्ड अभी ऊपर जा रहा है तो वो भी एक फैक्टर है कि जो एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट होता है. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. हाँ, सो या सो Sir, I have a doubt. सी आई टेल यू कि 2007-8 का जो सब प्राइम क्राइसिस था, एनीबडी अवेयर ऑफ दैट? Yes, sir. इज देयर एनीवन हु इज अवेयर ऑफ दिस सब प्राइम क्राइसिस ऑफ यूएस? Yes, sir. अच्छा, तो क्या सिनेरियो था वो टाइम पे कि यूएस का जो टॉप मोस्ट जो इन्वेस्टमेंट बैंक था, लेमन ब्रदर्स, Lehman ठीक है, Brothers. हाँ वो बंद, मतलब दे शट देयर ऑपरेशन, शट डाउन देयर Bankrupt. ऑपरेशन. हाँ, बैंकरप्ट हो गया था. तो उसका इम्पैक्ट जितना दूसरे कंट्रीज पे हुआ था उतना हमारे कंट्री पे नहीं हुआ था. So that was because of rumors, right? सॉरी, That was because of rumors. नहीं, it was not for the rumors, it was because of the level of spending that we do, the kind of habit that we have. Okay, say for example, कल अगर तेरा job लगता है and if you start your salary or your job gives you the salary of 30,000 per month, what will be the amount that you will spend? I'm waiting for your response. कितना Yes, spend करेगा? If you are getting 30,000, how much amount you will spend? 22 to 23. 22,000 चलो I'll take. बाकी का क्या करेगा तू? Save करूँगा.
for future बाकी crisis. Save, नहीं, my invest. question is the rest 7,000 rupees, what you will do with that? Save, no? इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ और सब सेविंग के लिए मेडिकल क्राइसिस कभी भी आ सकते हैं. Okay, so basically you are not going to spend it on expenditure either. You will go for an investment or you will purchase a insurance, यस सर. right? तो जितना तेरा सैलरी उतना तो स्पेंड करता है पूरा का पूरा, नहीं ना? ये No. हमारा कल्चर है. बट वो वेस्टर्न कल्चर क्या था? If you are earning $1,000 per month, you will not spend $1,000 per month. Rather, you will go for $1,500 or $2,000 per month. Are you getting it? Yes sir. So this is the main reason why the India was not affected with that recession, that quantum. At that, though impact था, हर एक जो भी कंट्री का कुछ भी अगर होता है तो इम्पैक्ट दूसरे कंट्री पे आता है, बट क्वांटम ऑफ इफेक्ट माइट डिफर. हो सकता है कि उसके नेबरिंग कंट्रीज पे 70% इम्पैक्ट हो, तो हमारे कंट्री में नीड नॉट नेसेसरी कि 70% इम्पैक्ट हो सकता है 5 to 10% और 20% इम्पैक्ट होगा. नॉट दैट डिवास्टेटिंग. उसके लिए यस बैंक को उठने नहीं दिया, लाइक बैंकरप्ट नहीं होने दिया ना. क्या? Yes, उसके because लिए yes. in order to maintain the confidence of the public on banking sector, RBI had to go for a bank recap. Okay sir. Thank you. मतलब सब बैंक से अपना ऑपरेशन शट डाउन कर देंगे तो where people will go? Do you think कि बैंक के पास liquidity रहेगा? फिर is the bank in position to give finance for the projects? No, right? So point यही है ना कि मतलब जो market conditions है, we don't understand that. What if the tandem goes in opposite way? मार्केट ऊपर जा रहा है और आपके स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है. आपको पता है कि मार्केट का भी कंडीशंस क्या है. यू नो द मार्केट कंडीशन, राइट? Yes. एवरीथिंग इज एट होल्ड, मतलब कुछ चल ही नहीं रहा. देन ऑल्सो मार्केट Index इज गोइंग maintain अप. करने के देन लिए ऑल्सो करते हैं ना. पीपल आर, देन ऑल्सो कंपनीज आर गिविंग गुड रिजल्ट्स. ये क्वार्टर का Yeah. जो रिजल्ट है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन बाय क्वार्टर रिजल्ट? Quarter over quarter. A year carries a 4 quarter, and Yes, a sir. listed company like Infosys, they are expected to give annual result. Apart from annual result every quarter, and they are supposed to showcase their progress. समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो अगर आपको पता है कि कोई प्रोडक्शन नहीं चल रहा, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रहा, पब्लिक का इनकम कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, बहुत लोग का हो रहा है, बहुत लोग का नहीं हो रहा. द वन हु ट्रेड्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज जनरेट्स द इनकम, द वन हु इज नॉट, IT sector they are also not generating, right? Yes. Are you getting it? What Yes, if sir. what if one of your this thing, you take any example, near and dear ones who used to work with one private sector company. Okay. One second. Yeah. So if your friend is working in one private sector company and because of this COVID, he is not going to his office, और वो ऑफिस वाले उसको सैलरी भी नहीं दे रहा, how, what do you feel? बंदे के पास कितने महीने का सेविंग्स रहेगा? एज पर दी इमरजेंसी रेशियोज. नेक्स्ट मतलब जब तुम आगे दूसरे सभी की फाइनेंस में पढ़ोगे तो तुम लोग को आएगा कि अगर तुम्हारा जॉब लगता है तो you should not spend entire money of your salary. Yeah. Rather you Yes, should sir. save 50%. So by the time 1 साल कंप्लीट होता है तो आप लोग ने 6 महीने का स्पेंड किया, 6 महीने का आपके पास स्पेयर में है. तो नॉर्मल लेमैन के पास भी 6 महीने तक का सैलरी, मतलब सेफ्टी, यू व्हाट डू वी कॉल सेफ मार्जिन मनी विल बी देयर विद देम. बट क्या होगा अगर सपोज कि किसी को हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो सेविंग्स तो चला गया, इनकम है नहीं, तो क्या करेगा बंदा, कहाँ से पैसा लाएगा? तो अगर ये सिनेरियो है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट अर्निंग बिकॉज ऑफ द कंपनीज आर नॉट वर्किंग, एंड कंपनीज आर शोकेसिंग कि बॉस मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना ये हुआ. हाउ इज इट पॉसिबल? जब मेरा प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा तो मेरे को प्रॉफिट कहाँ से होगा? मैं गुड रिजल्ट कहाँ से दिखा सकता हूँ? आर यू गेटिंग इट?
Yes. तो टाटा का इस क्वार्टर में ज्यादा सेल हुआ है ऐसा बता रहे हैं. Sorry? टाटा मोटर्स. हाँ, Tata, what? Tata Consumer or what you are talking about? मोटर्स Sorry? मोटर्स ने इस क्वार्टर में ज्यादा सेल किया है लाइक प्रीवियस क्वार्टर के कंपेयर में. ज्यादा सेल्स किया वो दिखा दिया, बट वो लोग ने क्या किया हाँ. पता है कि सी फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च था, ठीक है. तो मुझे पता था कि ये जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड होने वाला है, तो मैंने क्या किया कि मेरा नेक्स्ट क्वार्टर का जो एक्सपेक्टेशन था ना वो मैंने कम ही रखा. लाइक व्हाट आई एक्सपेक्ट कि मेरा जो सेल्स रहेगा ना 1000 यूनिट्स रहेगा. बट सिनेरियो क्या हुआ, रियलिटी क्या हुआ कि मेरा एस्टिमेट 1000 था, हुआ 1200 और 1500. बट व्हाट इफ द सिचुएशन वाज नॉर्मल, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड 10,000 और 20,000, राइट. माय एस्टिमेट वुड बी दैट. या हाँ, तो अभी वो नॉर्मल सिचुएशन में अगर मेरा एस्टिमेट 20,000 हो सकता है, तो अगर ये सिनेरियो में मैं 1000 रखता और वो 1200 होता है, डू यू फील दैट इज इट जस्टिफाइड? Is it justified to keep your estimates below level? नो. The situation would have been the normal. No, right? अगर मैं सेम वे में 20,000 को 1200 से कंपेयर करूं, डू यू फील दैट माय कंपनी हैज आउट परफॉर्म? नो सर. हाँ, तो जब सिचुएशन रिवर्स हो रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो बस समझ लेने का कि कुछ ना कुछ तो गूफ अप्स है, और ये बबल हो सकता है जो कभी भी फूट सकता है. सो बी कॉशियस. अभी करेक्शन आएगा ना पूरे मार्केट में एक साथ. I am waiting for the correction only. I'm not, I'm not parking my funds over here as of now. I'm holding. यू आर होल्डिंग है. I'm holding the cash because अभी ये situation ऐसा है कि the person who holds the cash is the king. Sorry. करेक्शन आएगा तब खरीदोगे. Exactly. See how smart you are. You know the situation. You know how to take your call because majority cannot take it. They don't understand only. Is this clear? Challenges Yes, sir. faced by financial sector, or anybody has any doubt? No, sir. No, sir. Sure? Sure? Sir, I have a doubt. Yes, Mr. Asher. Yes, credit delivery system. Can you explain? Credit delivery system, beta. What do you mean by credit delivery? Means the time period. Okay. That What we else? hold the product. See, point is what credit delivery system is not that efficient. That was not efficient in before what? Before freedom, after freedom, post new economic policy. ये टाइम पे उतना एफिशिएंट नहीं था. हाँ, अभी आई कैन से कि अभी एफिशिएंट है, बट होता क्या है, अभी रिसेंट एग्जांपल ले लो कि आरबीआई ने बोला कि जितने भी बैंक्स है और जिसने वो लोग ने जो भी लेंडिंग किया है सबको मोरेटोरियम पे डाल दो. Yes. बट आरबीआई ने ऐसा बोला क्या कि ये जो मोरेटोरियम पीरियड है उसका इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दो. No, sir. No. प्रॉब्लम है ना. आरबीआई कुड हैव Yes. डन दैट बिकॉज अगर आप कंट्री के सिटीजन्स को इतना मतलब इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वो लोग के कंडीशन समझ रहे हो, तो बॉस इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड टेक अ डिसीजन व्हिच गिव्स बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट टू देम, इनडायरेक्ट नहीं. इज दिस क्लियर? मतलब क्या होता है Yes, कि sir. मुझे ये चाहिए था कि मेरा जो इंटरेस्ट पेमेंट है ना वो कुछ भी ना हो. मोरेटोरियम दे दिया, ठीक है, अभी नहीं तो बाद में मुझे इंस्टॉलमेंट तो पे करना ही है तेरे लोन का. Yes. Yeah. बट तूने इंटरेस्ट वेव ऑफ किया कि इतने पीरियड का. क्या करेंगे ये जो जितना मोरेटोरियम मैंने 6 महीने का लिया, सपोज ऑलरेडी इट्स बीइंग 5 मंथ्स, राइट? यू टेक अप्रैल, Yes. मई, जून, जुलाई, नाउ इट इज अगस्त भी रहेगा. 31 अगस्त तो डिक्लेयर हो ही गया है, ठीक है. तो यू टेक 5 मंथ्स, मेरा इनकम नहीं है और 5 महीने का इंटरेस्ट वो छोड़ेगा क्या? ठीक है, वो बोलेगा तू बाद में दे, बट ये 5 महीने का इंटरेस्ट वो काउंट करेगा और लास्ट Yes. नेक्स्ट जब फाइनल सेटलमेंट होगा तब वो ले लेगा. तो बेसिकली कुछ माइनस नहीं हुआ, सॉरी. कुछ डिक्रीज नहीं हुआ हाँ, yes, इंटरेस्ट पीरियड में. yes, there you are, Yeah. perfect. पावर सप्लाई कंपनीज ने भी यही चीज किया ना. Yes, true. But see,
पावर सप्लाई कंपनीज ने जो किया उसके पीछे रीजन था और उसके पीछे हम लोग ने समझा नहीं क्या. I'll tell you. What was the last date of meter reading that a person visited at your premises before the lockdown, March right? मतलब end. February. मतलब February. मार्च में तो लॉकडाउन आ गया. हाँ तो मार्च मतलब में February का. So February का first week would be the first, would be the last option when the that energy person would have visited at your place and would have taken the screenshot of the last meter Yeah. reading. ठीक है. So till Feb reading हुआ आपका 1000 यूनिट्स. चलो आई टेक 10,000 यूनिट्स था जब उसने स्क्रीनशॉट लिया. मीटर पे 10,000 यूनिट डिस्प्ले हो रहा था. ओके. Yes sir. नाउ आई टेल यू कि ऑन एन एवरेज सपोज कि आप लोग का जो बिल आता है, आई टेक नॉर्मल, ठीक है, 1,000 रुपीज आता है. तो यू टेक जो फेब का जो बिल था वो मार्च में आपको आ गया, जो रीडिंग एक्चुअल रीडिंग वाला था. ओके. मार्च का बिल जो अप्रैल में आया विदाउट रीडिंग, अप्रैल का बिल जो मई में आया वो विदाउट रीडिंग, मई का बिल जो जून में आया वो भी विदाउट रीडिंग. बट जून में बंदा आया, जून का जो बिल था ना उसका रीडिंग के लिए बंदा आया जुलाई में, जुलाई के फर्स्ट वीक में, और आपको बिल दिया. बट ये जो 3 महीने का जो बिल दिया ना वो क्या था? अप्रोक्सीमेट था. अगर सपोज कि वो लोग क्या करते, लास्ट ईयर का आपका कंजम्पशन चेक करते सेम मंथ का, अगर वहां पे 400 मतलब व्हाट डू आई से 40 यूनिट्स या 100 यूनिट्स दिखाई दे, 150 यूनिट्स है, तो 150 की यूनिट्स के बेसिस पे आपको ये मंथ में मतलब ये 3 महीने में उसने बिल दिया. बट डू यू फील कि ये जब हम लोग ऑल द टाइम एवरी डे मतलब घर पे रहते हैं कि मतलब फैन बंद रहेगा, लाइट बंद रहेगा, कुछ बंद रहेगा नहीं, राइट? नहीं. कुछ या तो टीवी रहेगा, या तो ये चलो, या तो वो चालू, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चालू रहता है. तो क्या होता है, बिल का जो कंजम्पशन उसने सपोज 150 का कंसिडर करके दिया और वहां पे आपका हुआ 200 यूनिट्स का कंजम्पशन, तो 50 यूनिट्स का आपको पे करना, यू आर लायबल टू बी 50 यूनिट्स. आर यू गेटिंग इट? Yes sir. मार्च का 50 यूनिट्स आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, सेम वे में अप्रैल का, मई का और जून का. कितना हो गया? 50 यू टेक्स 200 यूनिट तो ऐसा ही हो गया. हाँ सर, मतलब पूरे Okay. एक महीने का बिल बाकी था वो. एग्जैक्टली. तो पॉइंट क्या हुआ कि वहां पे 10,000 यूनिट्स का कंजम्पशन दिखाई दे रहा था जब फेब में एक्चुअल में बंदा रीड करके गया था मार्च में. फेब का बिल जो मार्च में उसने दिया ना, तो वहां पे 10,000 था. अभी रिसेंटली उसने जो मुझे बिल दिया ना, वहां पे मेरा था यूनिट्स 12,000. कितना यूनिट्स आया? डिफरेंस कितना आया? 2000 का. 2,000 यूनिट्स का डिफरेंस आया. नाउ यू टेल मी कि अगर आप लोग ने 1500 यूनिट्स का आपने बिल पे कर दिया है, कितने यूनिट्स का बिल पे करना बाकी है आपका? Fine. कितने? 500 यूनिट्स का बिल पे करना बाकी है. स्टिल यू आर लायबल टू 500 यूनिट्स का बिल, जो उसने कंसिडर ही नहीं किया था. और आपको पता है इट इज हिज राइट कि बॉस मेरा 500 यूनिट तुमने ज्यादा यूज किया है तो उसका पैसा दे मुझे. तू कहाँ पे गलत किया उसने? गलत नहीं किया, ये क्रेडिट रेवेन्यू सिस्टम. सॉरी, हाँ सर बराबर. समझ में आया क्या? पॉइंट क्या है, उसने जो बिल दिया ना और उसके पीछे वो- उसने जस्टिफिकेशन भी दिया है आपको. अगर इफ यू हैव गॉन थ्रू दैट, इट हैज गिवन द जस्टिफिकेशन. बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड एंड व्हाट डू दे फील कि बॉस ये तो लूट मार, मतलब दे आर लूटिंग अस एंड दे आर सेंडिंग बिल्स लाइक एनीथिंग. हाँ, आई एम नॉट डिनाइंग. मेजोरिटी आई एम कंसिडरिंग कि सपोज कि 100% में से 70% को राइट गया, 30% को रॉन्ग जा सकता है. इट कैन गो रॉन्ग, ठीक है. इफ यू गो एंड इफ यू क्लेम, दे विल गिव यू. बट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? फर्स्ट हैव योर होमवर्क डन. Yes. फेब का बिल निकालो, मार्च में जो आया था ना बिल, लास्ट बिल, उसका मीटर रीडिंग चेक करो. और अभी रिसेंटली आपके उधर बिल्डिंग के नीचे या फिर तो बंगलों के बाहर जाके उसका रिसेंट मीटर रीडिंग चेक करो. आप डिफरेंस निकालो कितना आया, और फिर जितना भी बिल का कॉपी आपको ईमेल पे आया उसमें चेक करो उसने कितना यूनिट्स का कंसिडरेशन किया है. बिकॉज मीटर तो आपके सामने ही पड़ा है ना, मीटर थोड़ी वो छुपा के अपने घर पे लेके गया है. हाँ सर. then you can compare. So it is not the fact that कि ऐसा ही हो सकता है, सिचुएशन में go wrong, but what I have said majority के लिए ये applicable होता है. That is what I felt, okay? Because the building in which I stay, where do I stay, majority of the people
वर लाइक यार मेरे को ज्यादा है, मेरे को नॉर्मली सपोज 700-800 आता है, 1000 रुपया आता है, मेरे को सीधा 9000 का बिल दिया, ये दिया वो दिया। अरे बॉस तू 24/7 घर पे था, रात को समर में मतलब मार्च और अप्रैल में तूने मतलब रात को 10 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक तूने तेरे एसी चालू रखा था। बट अगर सपोज तू जॉब करता होता तो तू क्या होता सिचुएशन? पूरा दिन एसी चालू रहता, पूरा दिन टीवी चालू रहता? नहीं ना। बस पकड़ के चलो ऐसा और फिगर आउट करो। बताया बहुत लोग को भी मैंने बताया, तो देन दे अंडरस्टूड कि नहीं बॉस यू आर राइट। देन दे कंपेयर्ड द वे आई सेड, देन दे वर सेटिस्फाइड। नहीं, द power bill that Adani or Tata has sent to us is correct. But few people felt कि नहीं ये correct नहीं है, they went, then they made them understood कि बस ऐसा ऐसा है। Okay. Yes, sir. Anybody any doubt with respect to challenges faced by the financial sector? See, these are the challenges that what I felt कि ये हो सकते, it can be more than that. फाइनेंशियल सेक्टर में जो चैलेंजेस है इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, बट ये जो मुझे लगा मैंने आपको बताया। दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग कि ये सब सिचुएशंस है और ये सब प्रॉब्लम्स है जो फाइनेंशियल सेक्टर को फेस करना पड़ता है। दूसरा Okay, सिचुएशन sir. और बहुत सारे भी है, बट विच एवरीथिंग वी कैन नॉट कवर, राइट? Yeah. हाँ, सो जो मेन है वो मैंने बताया, इसके बियॉन्ड भी हो सकता है। लाइक पेमेंट एंड सेटलमेंट चैलेंज हुए, ठीक है, कि आप लोग ने पेमेंट किया थ्रू डेबिट कार्ड। सपोज यू वेंट टू ओबेरॉय मॉल विच इज एट गोरेगांव हाईवे पे, पता है किसी को? हाँ ऑल ऑफ यू फ्रॉम मुंबई और सम ऑफ यू आर फ्रॉम सर देखा है। हाँ सर। सपोज कि वहां पे लाइफस्टाइल में शॉपिंग करने के लिए गए और तुम्हारा बिल था 10,000 रुपीज एंड यू स्वाइप योर डेबिट कार्ड एंड मनी गॉट डेबिटेड बट इट वाज नॉट क्रेडिटेड टू लाइफस्टाइल का अकाउंट। अगेन यू हैड टू स्वाइप एंड मेक द पेमेंट। सो इफेक्टिवली आपके अकाउंट से 20,000 गया, बट पेमेंट 10,000, बट 10,000 स्टिल पेंडिंग ना। यू शुड रिसीव द क्रेडिट बैक और रिवर्स इनटू योर अकाउंट। Yeah. यस सर। So as per Yes, the sir. norms, it is 48 hours का time that bank has got to check in and reverse it Reverse back. money. हाँ, तो अगर नहीं होते 48 आवर्स में तो क्या करना पड़ेगा आपको? बैंक को कंप्लेंट करना। बैंक जाना पड़ेगा। अगर बैंक अगर फिर रूल क्या आता है 48 आवर के अंदर अगर आपको नहीं मिलता, यू हैव टू कंप्लेंट विद इन 7 डेज। 7 डेज के अंदर आपने कंप्लेंट नहीं किया तो ठीक है, बट इफ यू हैव कंप्लेंट विद इन 7 डेज ऑफ योर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, इट इज बैंक्स ड्यूटी, दे शुड रिवर्स इट विद इन 15 डेज। व्हाट इफ इट इज नॉट डन? 15 डेज का ग्रेस, तो 30 डेज हो गया। सो व्हाट इफ इट इज नॉट डन विद इन 30 डेज? you have an option, RBI का बैंकिंग ombudsman पे जाके you raise a complaint within what 48 hours it gets resolved। ये पता है तुम लोग को? हाँ अभी टीवी पे ऐड आ रहा था इस चीज के बारे में। हाँ सर वही। So my point is what, अगर ये एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाया होता, आप लोग ने किसी ने भी ऐसा कोई कष्ट उठाया RBI के वेबसाइट पे जाके कुछ सर्च करने का? No. नहीं। See, we don't want to take initiative only. We don't want to get into the problem that we are facing. रूट कॉज में उसका सोल्यूशन अगर हम लोग फाइंड आउट करने का एफर्ट्स नहीं डालते, हाउ डू यू फील और व्हाट डू यू थिंक कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं? See, you are studying, you are literate, you can read this, you can attend the online lecture. Majority of these people of your age are not attending. सर They can't read also. Do you feel it is possible for them to log into the RBI's website and raise or lodge a complaint? No. Yes. अभी नेक्स्ट लेक्चर भी शुरू होगा सर। किसका कितने बजे? 11:15 11:15 है सर। उस लेक्चर हाँ सर। श्वेता मैम। श्वेता मैम। श्वेता मैम का है सर। ठीक है, नो इश्यू। सो वी स्टॉप आवर लेक्चर हियर। चैलेंजेस फेस्ड बाय फाइनेंशियल सेक्टर। ओके, Yes sir. आई होप कि सब लोग ने नोटबुक और पेन में ये सब नोट डाउन किया होगा। Yes sir. Yes, यस yes, sir. अगर नहीं किया है तो इट्स ओके, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो क्विज में या तो फिर दूसरे लेक्चर में आपको देखना पड़ सकता है। So please ensure next time onwards, if you sit for any of the faculty's lecture, do carry a pen and a notebook. अगर ये कैरी नहीं कर सकते ना तो क्या होगा फिर?
तारे जमीन पर, देखा है किसी ने? फोन में नोट्स लिख लेंगे। हाँ रुचित, यस मतलब सर। तेरे पास कितने फोन है? लैपटॉप से अगर ज्वाइन किया तो वो लोग फोन में लेके सकते हैं ना सर, उसके लिए बोल। मैं बुक में लिख रहा हूँ। गुड। थैंक यू See, सर। ways and means you people are figuring out. Ways and means you are finding out कि कैसे हो सकता है. It is up to you. But make Yes. sure कि you note it down, whatever the points that we discuss, because everything is not there on slide, what I talk. Yeah. Okay. Chalo then, take care. Bye-bye. See you next lecture. Bye everyone. Bye, sir. Bye, brother.